focus to Manipur because the state has been on the edge for more than 80 days now, and over 130 people have lost their lives as violence and clashes gripped the state. The video of two women being stripped and paraded naked has sparked nationwide anger, leading to calls for Chief Minister Biren Singh's resignation. Now, in the midst of widespread outrage, Times Now confronted the Chief Minister on the situation in Manipur, posing 18 pressing questions but got zero answers. While the Chief Minister was evasive, his security blocked Times Now reporter. Take a look at this entire sequence. Sir, after 75 days, why the accused was not arrested is the question being raised. सबको पकड़ लिया है. सर, अपोजिशन सवाल उठा रहा है इस्तीफे पर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? Sir, do you think that authorities are incompetent? How would you respond to it, sir? Do you think that strict action should be taken, sir? Sir, do you think that strict action should be taken again? Do you think what are the loopholes if the actions are not being taken? आपको क्या लग रहा है सर, क्यों इतना विलंब हो रहा है? मैडम, अपोजिशन, हाँ सर. बीरेन जी, विपक्ष बार-बार आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है, इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? So how would you respond to the opposition raising again and again questions for the? Let him speak. He's speaking. Please let him respond. The nation wants to listen to him too. The nation wants to listen to him. Please let him respond. Sir, he's speaking. Manipur is burning, sir. Why the situation is not changing? How would you respond to it, sir? Madam, please. What is the reason, sir? Center has deployed its forces. State has also deployed its forces, but still, why no action has been taken, Biren sir? Madam, please. तो देखिए, टाइम्स नाउ ने सीधे सवाल जो है मुख्यमंत्री से पूछने की कोशिश की, पर उस पर हमें कोई भी सीधा जवाब नहीं मिला. अब इसी के बीच अगर विपक्ष की बात करें तो उनका जो निशाना है वो मुख्यमंत्री पर साधा जा रहा है, ये कहकर कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें. उनका ऐसा भी एलिगेशन है कि प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. Well, he has the blessings of the Prime Minister. So he is not worried about what answers he has to give to the media and through the media to the people of India, because the Prime Minister of India is protecting him. If the Prime Minister of India actually held him accountable, he would not be sitting on the chair. It is the Prime Minister's protection and blessings which is leading to this indifference and insensitive attitude of the Chief Minister, who for the past 2 months was not aware that how many incidents of gang rape and brutality have taken place. देखिए, बड़े दुख की बात है कि अहंकार भारतीय जनता पार्टी को शासन में आने के बाद इतना हो गया है. बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या वो भी किसी की बेटी नहीं थी जो टाइम्स नाउ की रिपोर्टर है? और वहाँ उनको कहाँ राजनीति करनी है, वो सच्चाई दिखा रही है. तो आप अपने सिक्योरिटी और अपने लोगों के साथ उसके साथ बदसलूकी करवाते हो. चीफ मिनिस्टर का क्या ये काम रह गया है अभी? यही है चाल चलन और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का. तेजश्री के पास जाना चाहूंगी इसको लेकर. तेजश्री, जहां तक अगर हम क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करें, सवाल है जिन पे जवाब की जरूरत है, पर अभी तक आपने भी सीधे सवाल जो है पूछने की कोशिश करी मुख्यमंत्री से, पर उस पर कोई ठीक रिस्पांस मिला नहीं है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं. जी बिल्कुल, कल दोपहर को हमने जब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से सवाल पूछने की कोशिश की, 18 सीधे सवाल हमने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उनसे जवाब हमें एक भी नहीं मिला तो सिर्फ हमें चुप्पी मिली थी. और 18 जो सवाल थे वो काफी वाजिब सवाल थे जो हमने मुख्यमंत्री से पूछना चाहे थे कि अभी भी मणिपुर जल रहा है, और अभी विपक्ष भी ये कह रहा है कि अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया है. और हम भी जब ग्राउंड पे थे तब हमने भी यही महसूस किया. रात को हम लोग बंकर में छुपे हुए थे, तब हमने खुद देखा कि किस तरह से वहां पर स्कूल में आग लगा दी गई थी, सारे घरों को तहस नहस कर दिया गया था, और इसके साथ साथ पत्थरबाजी भी बाद में होने लगी थी. 2 गुटों में आपस में बहुत हिंसा होने लगी थी. और इसके बाद भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि यदि स्थिति सामान्य है, तो ये प्रश्न जरूर उठाता है कि यदि स्थिति सामान्य है तो फिर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो क्यों हो रही हैं. इसके अलावा हमने ये भी पूछा था उनसे कि 75 दिन बाद आरोपी को क्यों गिरफ्तार किया गया था. जी, तो काफी सवाल है इस पूरे मामले को लेकर जिन पर जवाब देने की जरूरत है. जवाबदेही कौन लेगा ये भी देखने की जरूरत है. शुक्रिया तेजश्री हमारे से जुड़ने के लिए.